Hello students, continuation of this chapter. Here, administration. The king was omnipotent during सोलंकी पीरियड. मतलब यहाँ पे देखते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये omnipotent है. Okay, he is the center figure and he is the important figure. Okay, in the administration, the different departments were looked after by different ministers, as we are seeing today, as in the modern time, the council of ministers, as the same in the past, in the medieval period, different ministers in the they were excellent, they were expelled in their field, so they become a ministers and look after their departments. The main minister was known as you are here see Maharnatriya, okay, who looked after the finance department. So finance minister, as we can say, okay, he was known as finance minister Shrikaran. The major part of the administration was called an mandal. The major part of the administration was called as mandal. The capital was situated on the banks of the river Saraswati. So the this kingdom capital was situated on the bank of river Saraswati. So it was called as Saraswati Mandal. What we know as Saraswati Mandal. The subsection of Mandal was called as Patak. There were many Pataks. Means here many villages were included in Patak. There were different mandals like Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Ketak Mandal, Lot Mandal, Medpand Mandal, etc. So this was the administration detailed description, I can say. So here, at a time, architecture and culture, how the architecture was there at a time and how the culture looked like. The people during the Solanki period followed Shivaism. Okay, you see here different isms is there in the prevalent in the society. So during the Solanki period, people followed Shiva. Okay, that's called Shivaism in Gujarat. As Somnath was the main center of Shivaism. Okay, the Somnath place was main center of Shivaism. In the same way, Dwarka was the famous pilgrim center of Vaishnavas. Those who are Vaishnavas, so the Dwarka became a famous pilgrim center. In the medieval age, the impact of Buddhism reduced. So हम यहाँ देखा जाता है जो बुद्धिज्म अलग इज्म है. ओके, देयर आर डिफरेंट इज्म आई टोल्ड जस्ट नाउ. सो जो बुद्धिज्म था इसका महत्व मिडिवल युग में इनका कम हो गया. ओके, द फॉलोअर्स डिक्रीज इन द मिडिवल पीरियड. ऑन द अदर हैंड जैनिज्म बिगैन टू स्प्रेड. उस वक्त में जैनिज्म था. ओके, जैनिज्म फैल रहा था. ओके, जैनिज्म वाज स्प्रेडिंग. Okay, as a result of it, many great and grand Jain temples were constructed during this period, and there was a tremendous progress in architecture, sculpture and painting. तो उस वक्त में जैनिज्म फैल रहा था इस मध्य युग में गुजरात में. एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसके वजह से मेनी ग्रेट एंड ग्रैंड जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड. बड़े बड़े जैन टेम्पल्स को निर्माण किया गया बड़ी तादाद में ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड देर वॉज ए ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर. उस वक्त में बहुत काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में एंड पेंटिंग्स में भी. देर वॉज अ टच ऑफ राजस्थान स्टाइल इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस एज. इस युग में हम तो को जो राजस्थान स्टाइल है आर्किटेक्चर का उस हम देखते हैं उस तरह का टच यहाँ पे दिखाई देता है. द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा ऑफ द 11th सेंचुरी. तो ये सन टेम्पल कहा जाता है मोधेरा में ऑफ 11th सेंचुरी में युग में. विमलवशी टेम्पल ऑफ अबू में. रुद्रमलाया कंस्ट्रक्टेड. ओके, इन 12th सेंचुरी में इसको रुद्रमलाया बनाया गया, निर्माण किया. ओके, जिधोरनर वॉर ऑफ इसी ईयर. सोमनाथ टेम्पल, डेरासर ऑफ देलवार ऑफ 13th सेंचुरी एक्सेट्रा, ये सारे इस वक्त में निर्माण किया गया. अटेन नोट वर्ती प्लेस इन द आर्किटेक्चर. उसमें ओके इसकी एक काबिलियत, इसकी एक प्रख्यात हो चुकी है. इस वक्त में इसको बनाया गया इंडिया में. एलॉन्ग विद टेम्पल्स ऑफ गुजरात, अदर आर्किटेक्चर वर्क्स लाइक यहाँ हम देखते हैं पॉन्ड्स है, कुएँ है, तालाब है, लेक है, फोर्ट्स है, किले है, एंट्रेंसेस एंड टोरेंट्स और इंक्लूडेड. इसमें भी ये सारा इंक्लूड किया गया. अमॉन्ग कीर्ति तोरम, द कीर्ति तोरम ऑफ
वैद्यनगर इज़ वेरी फेमस, ये एक्चुअली बहुत फेमस हो चुका है। हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा गया स्क्रिप्ट से, ऑफ दैट एरा वर नोट वर्दी रिटन। नाम किस पे लिखा जाता है? तालपत्रा। तालपत्रा 2-3 फीट होते थे, 2-3 फीट लॉन्ग होते थे। एंड ओके, यहाँ पे दिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया, 1 इंच 3 इंच इसके लेंथ और ब्रेथ होते थे। तो इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन इसमें लिखा देता था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ओके, ब्रॉड ऑन मार्जिन्स वर ड्रॉन ऑल द 4 साइड, साइड पे मार्जिन होती है। रिटन वर्क और ड्राइंग वॉज डन इन लिमिटेड स्पेस में, यहाँ पे ड्राइंग या कुछ भी लिखते थे इस तरह का। अपार्ट फ्रॉम दिस ए लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क हैड बीन फाउंड ऑन जैनिज्म ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ए लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क, बहुत सारा लिटरेरी वर्क भी यहाँ पे हुआ था। हैड बीन फाउंड जैनिज्म ड्यूरिंग, जैनिज्म वक्त में ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन अहमद शाह बिकेम द सेंटर ऑफ रूल, उस टाइम पे जो अहमद शाह पूरे गुजरात में इनका एक, जब ये एक्चुअली एस्टैब्लिश किया अहमदाबाद को, इनका रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। मैनी बुक्स वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, उस टाइम में पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारी बुक्स को लिखा गया, एज वेल एज इन गुजराती में भी लिखा गया। मैनी फेमस मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड में, इस सल्तनत पीरियड में बहुत सारी मस्जिदें का भी निर्माण हुआ है, एंड द मुगल पीरियड में भी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सरकेज रोज़ो एंड सिद्दी सैयदी जलाली आर फेमस ड्यूरिंग द मेडियन, ये दो जिसकी इमारत है आर्किटेक्चर फेमस है। इन दिस वे एज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 560 ईयर्स है गुजरात वॉज रूल्ड बाय राजपूत, तो 500 साल तक गुजरात को राजपूत ने राज किया। एंड लेटर ऑन बाय सुल्तान, उसके बाद में सुल्तान और ने मुगल्स ने राज किया। दिस बिकम एविडेंट फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड। इससे हमें एक सोर्स कहाँ से मिलता है? दिस बिकम एविडेंट, एक सबूत है आर्किटेक्चर से, एंड लिटरेचर रिटन, लिटरेचर सारा लिखा गया उससे इस वक्त पे हमको मालूम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।